اور اگر آپ کو میسج آئے گا تو کس نمبر سے آئے گا؟ ذرا زور سے بولیں، کون سا نمبر ہے؟ اگر 8173 کے علاوہ کوئی آپ کو میسج کرتا ہے تو وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. تو مہربانی کریں، جب تک آپ کو اس نمبر سے کوئی میسج نہیں آتا، وہی نمبر جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ کو میسج کرتا ہے، اور کسی بھی نمبر سے آ جائے وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بڑی خوشخبریاں آ چکی ہیں. اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب آپ ضرور حصہ بنیں گے. اب آپ کو قسطیں ضرور ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو نئی قسط کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ نئی قسط کے حوالے سے بڑی خوشخبری آ چکی ہے. آپ کو پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم نے بتایا ہے، بلکہ واضح طور پر آپ کو نوٹیفیکیشن دکھایا ہے کہ ایچ بی ایل کنیکٹ کی جانب سے، ایچ بی ایل کی جانب سے اور بینک الفلاح کی جانب سے واضح طور پر پوسٹر بھی بنا دیا گیا ہے، جو کہ اس قسط کے حوالے سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ اکتوبر تا دسمبر 2025 والی قسط جو رہتی ہے وہ ابھی جاری ہونے والی ہے، تو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ پوسٹر جاری کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قسط جاری کر دی گئی ہے، لوگوں کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو چکی ہے. لیکن یہ قسط دینے کا جو مرحلہ ہے یا قسط لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ فائنل ہونے کے بعد آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ کیمپ سائٹ پہ جائیں. مطلب کیمپ سائٹ کے بحال ہونے کے بعد یہ آپ کو قسط مل سکتی ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں آنا یہ ایک الگ بات ہے اور قسط ملنا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو قسط ملنا شروع ہو چکی ہے، مطلب آپ کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو چکی ہے، اور ملے گی کب؟ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر آپ کو کسی ہمارے چینل سے ہی بڑی خوشخبری یہ ملے گی کہ آپ کو اب کیمپ سائٹ کی بحالی کے بعد یہ قسط ملنا بھی شروع ہو چکی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قسط لینے کے لیے جا بھی سکتے ہیں. اب دیکھیں، جب ہم آپ کو معلومات دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سمجھنے میں تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹس میں قسط آنا شروع ہو چکی ہے، اور کچھ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے تو آپ سیدھے چلے جاتے ہیں کیمپ سائٹ پہ، پھر جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیمپ سائٹ ابھی تک بحال نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ قسط آپ کی شروع ہو چکی ہے، آپ کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو چکی ہے، تو آپ چلے جاتے ہیں ریٹیلر شاپس پہ، مطلب دکانوں پہ، اور وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ابھی تک صرف آپ کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بی آئی ایس پی کی جانب سے شروع نہیں کی گئی. اگر ایسا آپ کرتے رہے تو پھر آپ کے پاس صحیح معلومات نہیں پہنچیں گی. جیسا کہ آپ رمضان پیکیج آنے والے ہیں، ان کی صحیح معلومات نہیں ہوگی تو آپ صحیح رجسٹریشن نہیں کروائیں گے، آپ کو امداد نہیں ملے گی. اس لیے ہمیشہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جو معلومات بھی دی جائے اس کو آپ تھوڑا سا غور سے سن لیجیے. دیکھیں، ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بہت بڑی خوشخبریاں سنانے والے ہیں، جو کہ آپ کے فائدے کے لیے. ظاہر سی بات ہے، خوشخبریاں ہیں تو آپ کے فائدے کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایسے لوگ جو کافی عرصہ سے بھٹک رہے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ نہیں بن پا رہے، حالانکہ وہ حقدار بھی ہیں، تو ان لوگوں کو اب حکومت نے فوری طور پر پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شروع میں جب بی آئی ایس پی کا حصہ بنے تھے اس وقت تو غریب تھے، لیکن بعد میں ان کے مالی حالات بہتر ہوتے ہیں اور اب وہ امیر ترین فیملی کے طور پر ہیں، اور بی آئی ایس پی کا بھی حصہ ابھی تک ہیں. تو اس وجہ سے ان لوگوں کا کلا کما کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو پروگرام سے باہر نکالا جا رہا ہے، ان کی جگہ پہ صرف حقدار لوگوں کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے اپنے قریب دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو سال سے یہ امداد ملتی آ رہی ہے، احساس پروگرام ہو، بے نظیر پروگرام ہو، بچوں کے پیسے ہوں، مفت راشن ہو، جو کچھ بھی ہے انہیں ملتا آتا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا پی ایم ٹی سکور بڑھ نہیں رہا ہوتا، وہ کم ہو رہا ہوتا ہے، ان کے مالی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو 1-2 قسط ملتی ہے، اس کے بعد ان کے وظائف آنا بند ہو جاتے ہیں. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مالی حالات بہتر ہو جاتے ہیں، یا وہ پالیسی کی کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی کافی ساری شرائط و ضوابط ہیں، اگر آپ ان پر پورا نہیں اتریں گے تو آپ کو پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے. بہرحال اس حوالے سے مزید آگے چل کر بات کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ یوٹیوب چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس بار آپ کو رمضان پیکیج کی تمام تر اپڈیٹس بھی ملے اور گھر بیٹھے آپ کو اہل ہونے کا طریقہ کار بھی بتایا جائے. تو تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، تھوڑا سا غور فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے نئی قسطوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں جو کہ 13,500 روپے وہ ہیں جو 2025 کے رہتے ہیں، اکتوبر تا دسمبر والی قسط کے. تو اس قسط کے حوالے سے بہت بڑا انتظار عوام کو کرنا پڑا ہے. وہ اس وجہ سے کرنا پڑا ہے کہ سموں کی تقسیم ہو رہی تھی، بہت زیادہ رش تھا، اور ایک نیا ڈیجیٹل والیٹ سسٹم جو ہے وہ لایا جا رہا تھا. تو عوام کو اپنی قسط لینے میں یا پھر کیمپ سائٹ پہ جانے میں مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا تھا، اور زیادہ رش کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جن خواتین
ने अपनी सिम लेनी थी, वो अपनी किस्त लेने के लिए, मतलब इस तरह के 2-3 काम अगर उन पे ऐसे ही आ जाते तो वो परेशान हो जाती, ना ही वो सही तौर पे अपनी सिम ले पाती, ना ही सही तौर पे वो अपनी किस्त ले पाती। तो इस वजह से आपको इंतजार करना पड़ा है। और अभी आपने देखा होगा कि किस्त को बाकायदा तौर पर शेड्यूल कर दिया गया है और बैंक्स की जानिब से पोस्टर बना के पोस्ट भी कर दिए गए हैं, आपको बताया गया है। और इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि इन पोस्टर्स पे वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि आपकी जो अक्टूबर तक दिसंबर तक की सहमाही किस्त है 13,500 रुपए, वो जारी कर दी गई है। जब बैंक की जानिब से जारी कर दी जाती है तो वो आपके अकाउंट में पहुंच जाती है, मतलब रकम तो बैंक्स आपके अकाउंट में भेज देते हैं, फिर BISP की मंजूरी के बाद ही उसकी अदायगी स्टार्ट होती है। ठीक है, BISP आपको बताता है कि ये किस तरीक़ेकार से आप निकलवा सकते हैं, मतलब आपको रिटेलर शॉप पे जाना होगा या कैंप साइट पे जाना होगा, तो ये तरीक़ेकार वो आपको बताते हैं। ठीक है, अभी ये तरीक़ेकार फाइनल होना बाकी है और आप तमाम लोगों को हम ये बता दें कि इस बार आपको कैंप साइट से भी ये किस्त मिलेगी और रिटेलर शॉप से भी ये किस्त मिलेगी। क्योंकि पहले आपको 13,500 रुपए की किस्त सिंगल किस्त मिल रही है, तो आपको पता है कि 13,500 रुपए ही आपके अकाउंट में आए हुए हैं, तो वो आप फौरन निकलवाएंगे। इस हवाले से 8171 से आपको ये खुशखबरियां मिल रही हैं कि भाई आपकी किस्त आ रही है। तो जिन जिन लोगों को 8171 से मैसेज आ जाता है उन्हें वैसे ही कंफर्म हो जाता है। बाकी जो लोग अहल हैं वो 8171 वेब पोर्टल से भी चेक कर लें, उनकी अगर अहलियत कंफर्म हो चुकी है या फिर वो अपनी वॉलेट सिम ले चुके हैं तो उन लोगों को ये किस्त जरूर मिलेगी। तो बड़ी खुशखबरी तो सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि आपकी ये किस्त जो है आप बैंक्स ने जारी कर दी है, आपके अकाउंट्स में आ रही है और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन के अंदर इसकी अदायगियां भी शुरू हो जाएंगी बजरिया कैंप साइट और बजरिया रिटेलर शॉप। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आपको वॉलेट सिम मिल चुके हैं तो उस वॉलेट सिम के जरिए आपको सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको रमजान पैकेज की इमदाद भी इसी वॉलेट सिम से मिल सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटल वॉलेट्स के जरिए इस बार भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से रमजान पैकेज की इमदाद देने का फैसला किया गया है। तो BISP की ऐसी खवातीन जो रमजान पैकेज का हिस्सा बनेंगी उन्हें उन्हीं वॉलेट सिम के जरिए ये इमदाद दी जाएगी और ऐसी खवातीन जिनके पास ये वॉलेट सिम नहीं होगी उन लोगों को भी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए पेमेंट्स दी जाएगी, लेकिन उनकी जो पहले वाली कोई सिम होगी उसी पर ये रकम भेज दी जाएगी और उन्हें बता दिया जाएगा कि आप फलां बैंक के रिटेलर पर या रिटेलर की शॉप पर जाकर आप ये पेमेंट्स जो है निकलवा सकते हैं बगैर किसी कटौती के। इस बार याद रहे कि आपको किसी किस्म की कोई कटौती नहीं करवानी, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हों या फिर ये रमजान पैकेज की इमदाद हो। ठीक है, तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि इस बार पहले तो आपको कफालत प्रोग्राम की किस्त आ रही है, इसके बाद बच्चों के पैसे आएंगे। जब बच्चों के पैसे आएंगे उस वक्त आपको बहुत एहतियात से काम लेना होगा क्योंकि वो बड़ी रकम होती है, आपको पता नहीं होता कि टोटल कितनी रकम है। तो जब आपको एक्चुअल पेमेंट का नहीं पता होता तो फिर आप कटौती भी करवा बैठते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी कटौती की गई है या हमारे अकाउंट में कितनी रकम आई थी और कितनी हमें मिली है। तो इसलिए हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि भाई आप जब भी आपके बच्चों के पैसे आते हैं तो उस वक्त कैंप साइट्स पे स्क्रीनिंग का सिस्टम रखा जाता है। ठीक है, जो आपको चेक करके पहले टोकन पे लिख देते हैं कि आपकी इतनी पेमेंट आई हुई है, तो फिर जब आपको पता चल जाता है तो उसके मुताबिक ही जाकर आप अपनी पूरी रकम गिनकर वसूल करते हैं। अगर कटौती होती है तो आप BISP की जो ऑफिस है वहाँ पे भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या हेल्पलाइन पे कॉल करके 0800-264-777 इस पर कॉल करके भी आप अपना मसला हल करवा सकते हैं। तो आपको हमेशा से हमने यही बताया जो हुकूमत की जानिब से बताया जाता है, आसान अल्फाज में हम आप तक वो पहुँचा देते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से ना ही कोई तरीक़ाकार बताते हैं, ना ही कोई मनगढ़ंत कोड वगैरह देते हैं, ना ही कोई पोर्टल देते हैं। बस हमेशा से आपको यही कहते हैं कि आप सही सुना करें, हकीकत सुना करें और हकीकत पर ही अमल किया करें। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े फ्रॉड किए जा रहे हैं, आपको लिंक्स दिए जाते हैं, आपको कोई कोड दिया जाता है, व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है कि भाई इस पे आप अपना ID कार्ड भेजें, फलां करें तो आपको रमजान पैकेज में ऐड करवाएंगे, BISP का हिस्सा बनवाएंगे या इतनी इमदाद जारी करेंगे। तो वो सब कुछ आपके नुकसान के लिए होता है। ठीक है, वो आपको कोई रकम नहीं देते, वो आपका नुकसान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप उनसे बचें और हकीकत की तरफ आएं। हम आपको हकीकी अपडेट्स दे रहे हैं, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कोई भी प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है तो आपको इधर उधर कोई अपडेट सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर किसी को फीस देकर या इस तरह की कोई चेकिंग या रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ हम आपको बता देंगे। तो इसलिए आप क्यों इंतजार कर रहे हैं, अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में थैंक्स भी लिख दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हमें पता भी चले कि कितने लोग जो हैं उन्हें रमजान पैकेज की मुकम्मल मालूमात चाहिए, बेनज़ीर प्रोग्राम की मुकम्मल मालूमात चाहिए। तो इस हवाले से आप हमें भी अपना कमेंट करके ताकि हमें पता चले कि कौन बंदा हमें देख रहा है, सुन रहा है। तो जब हमें पता चल जाता है, आपका नाम पता चल जाता है, आपकी ID या आपके बारे में पता चल जाता है कि भाई आप भी देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको भी हम वो खुशखबरियां देते हैं, आपको भी खुसूसी तौर पर वो तरीक़ेकार बताते हैं जिनके जरिए आप रमजान पैकेज में ऐड हो जाते हैं, बेनज़ीर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि ये हकदार लोगों के प्रोग्राम है तो हम चाहते हैं कि हकदार लोगों तक की मालूमात पहुंचाई जाए। बहरहाल अब आगे चलते हैं, आपको बता रहे थे कि बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से जो खुशखबरी हैं, देखें एक
ایک बड़ी खुशखबरी ये है कि ऐसे लोग जो भटक रहे थे, हकदार भी थे लेकिन रजिस्ट्रेशंस के बावजूद वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका ये मसला पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फिर आपको ऐड नहीं किया जाता, इमदाद जारी नहीं की जाती, तो इस बार अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर कोई और सर्वे नहीं करवाया तो आपने डायनामिक सर्वे फौरी तौर पर करवाना है, जो कि आपका करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से होगा। उसके लिए मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म्स, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक मोबाइल फ़ोन भी आप अपने साथ रखेंगे। अगर आपके पास बिजली या गैस का कनेक्शन है तो उसका बिल भी आता होगा तो वो भी अपने पास रखें। तो ये चीज़ें लेकर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाएंगे और वहाँ से अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे। डायनामिक सर्वे करवाने के तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपकी जाँच पड़ताल मुकम्मल होती है और फिर हकदार होने की सूरत में आपको अहल भी किया जाता है, इमदाद भी जारी की जाती है। तो इसलिए हमेशा से हम कहते हैं कि अगर आपको प्रोग्राम की तलब है, आप चाहते हैं कि आपको प्रोग्राम में अहल होना है, आपको इमदाद चाहिए, तो आप सबसे पहला जो बुनियादी काम है वो तो ये है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन सर्वे करवाएं। इसके बाद ही आपका पूरा सिस्टम जो है वो स्टार्ट होगा, पूरा ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा, आपको इमदाद मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्रोग्राम में अगर आप अहल हैं तो आप अहल कैसे रह सकते हैं, मतलब खुद को नाअहल होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं। देखिए, आप बिला वजह अपनी मोबाइल सिम्स पे ज़्यादा इजी लोड ना करवाया करें। अपने अकाउंट पे कोई बड़ी रकम आने वाली, मतलब वो आपकी है नहीं लेकिन कोई इस्तेमाल कर रहा है आपका अकाउंट, वो बड़ी रकम 10 लाख या इससे ऊपर की रकम आपके अकाउंट्स में भेजना चाहता है और उसमें आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला, या तो आपकी अपनी रकम हो वो तो आप कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे के मतलब इस्तेमाल में आपका अकाउंट जा रहा है तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है। आपकी जो सिम है वो अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा के आप अपने पास ही रखा करें। अगर किसी दूसरे को देंगे तो वो भी आपको PISP से भी नाअहल करवा सकता है, इसके अलावा कोई और नुकसान भी दे सकता है। इसके साथ साथ जो लोग फैलर बनते हैं या बाहर मुल्क का ज़्यादा सफ़र करते हैं या अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड बनवा लेते हैं तो उनको भी नाअहल कर दिया जाता है, उनके पैसे भी रोक दिए जाते हैं। तो ये कुछ शराइत व ज़वाबित जो हैं इनको भी आप फॉलो किया करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मजबूरी होती है ये सब करना, मतलब अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड बनवाना या बाहर मुल्क का सफ़र करना या फिर फाइलर बनना, तो मजबूरी के तहत तो ज़रूरी सी बात है सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप मजबूरी के तहत ऐसा कर रहे हैं और आपके माली हालात उससे बेहतर नहीं हो रहे, माली हालात कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो इस तरह आपको उस वक्त में तो नाअहल कर दिया जाता है, मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है जब आप फाइलर बनते हैं या इस तरह की वजह बनती है। तो उसके बाद जो है आपको दोबारा से भी हिस्सा बनाया जाता है। जैसे कि अब काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे, अभी कुछ लोग सुन भी रहे हैं कि उनको पैसे कुछ अर्सा पहले मिल रहे थे, ठीक है, फिर अचानक उनकी कुछ किस्तें बंद हो गई और अभी वो 81 वेब पोर्टल पर चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, मतलब उन्होंने अपना सर्वे भी करवाया हुआ है। तो इस तरह एक लाइन में अगर ये लिखा हुआ नजर आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी अहलियत के चांसेस बढ़ चुके हैं, आप अहल रहेंगे और आपको इमदाद भी मिलेगी। ठीक है। तो मतलब उनकी 2-3 किस्तें शार्ट भी हुई तो दोबारा वो इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम आपको यही बताते रहते हैं कि जब आपकी कोई सॉलिड रीजन नहीं होती, और मतलब ऐसा है कि अगर आपका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया तो फिर उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि PMT स्कोर उस वक्त ऊपर जाता है जब आपके माली हालात बेहतर हो चुके होते हैं। ठीक है। अगर आपके माली हालात बेहतर नहीं होते तो PMT स्कोर ऊपर नहीं जाता है इन वजूहात की बिना पर। इसके साथ साथ जब आपका PMT स्कोर ऊपर चला जाता है तो फिर तो आप नाअहल हैं और आपको 2 साल का इंतजार करना होगा। जब 2 साल के बाद आपका नया सर्वे होगा तो उस वक्त आप दोबारा अहल हो सकेंगे। इसी तरह अगर आपका PMT स्कोर भी नीचे है और इस तरह की वजह बनी हुई है तो उसका हल ये होता है कि आपको PISP के ऑफिस से भी फौरी रुजू करना होता है ताकि आपको दोबारा भी बहाल करवाया जाए। बाकी ये जो लोग मतलब जिनके माली हालात बेहतर हैं फिर भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, तो उन लोगों को अब बारी बारी नाअहल किया जा रहा है। तकरीबन 10 लाख के करीब नए लोगों को जब अहल किया जा रहा है तो उनकी जगह पे ज़ाहिर सी बात है लोगों को पहले नाअहल भी किया गया है, क्योंकि 1 करोड़ के करीब खानदान जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है। मजीद इसमें IMF की जानिब से 2 लाख मजीद खानदानों को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। तो इस हवाले से उन्होंने सिफारिश किया है, अगर फैसला होता है तो उससे भी इंशाल्लाह आवाम को काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। बाकी अभी ये जो रमज़ान पैकेजेस आने वाले हैं तो आप तमाम लोगों को हम बता रहे हैं कि अगर आप रमज़ान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे वो पूरे पाकिस्तान का हो, सूबा सिंध का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, बलूचिस्तान का हो, पंजाब का हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर का हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो, जहाँ कहीं का भी हो, आपको रमज़ान पैकेज जो भी होगा, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी बताएंगे। अलग अलग सूबों के प्रोग्राम्स होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन भी बताएंगे। और उसके लिए आपने काम क्या करना है, काम ये करना है कि आप किस सूबा से हैं, आप अपने सूबा का नाम अभी कमेंट्स में लिखें, तो इंशाल्लाह आपके सूबे में जो भी रमज़ान पैकेज चलेगा उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार, उससे इमदाद लेने का तरीक़ाकार हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आप कमेंट में अपने सूबा का नाम भी लाजमी लिखें, मतलब आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, KPK से हैं या बलूचिस्तान से हैं, जहाँ से भी हैं। तो कमेंट करने से पहले आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वो मालूमात आप तक पहुँच भी सके, क्योंकि ऐसे लोग जो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है उन तक मालूमात सही तौर पे नहीं पहुंचेगी, तो बाद में उनके लिए परेशानी बनेगी। इसलिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बार आपको रमज़ान पैकेज से बहुत बड़ी इमदाद मिलने वाली है। रमज़ान पैकेज में अहल होने का तरीक़ेकार हम आपको बताएंगे, लिहाजा अभी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने सूबा का नाम भी लिखें, और अगर हमारी मालूमात पसंद आती है तो कमेंट्स में थैंक्स भी लाजमी लिख दीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और इस हवाले से हमारे साथ साथ रहिए, इंशाल्लाह हम आपको कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। रमज़ान पैकेज 10,000 रुपये मिले, या रमज़ान पैकेज से मुफ्त राशन मिले, या रमज़ान पैकेज से मुफ्त आटा मिले, या रमज़ान पैकेज से आपको 15,000 रुपये के चेक्स मिले, या रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन 9999 से हो, 8171 से हो, जिस तरीक़ेकार से भी हो, जिस कोड से भी हो, इंशाल्लाह हम सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन ही उनके पास जाएगा तो वही मालूमात देखेंगे। तो आप भी अभी से हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर का हिस्सा बन जाएं, और आपको भी इंशाल्लाह सबसे पहले ऐड करवाएंगे, आपको भी इमदाद जरूर दिलवाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई मालूमात के साथ, एक नई खुशखबरी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।